ظاہر ہے ان سب کے سہولت کار جو ہیں وہ یہاں سے ہی ان کو ملتے ہیں، اور ان کے لیے مکمل طور پر ہماری خاص طور پر سندھ پولیس یا ہماری انویسٹیگیشن اور ادارے جو ہیں، اساس ادارے جو ہیں، وہ اس پر کام کرتے رہتے ہیں۔ اور میں ایک بات بھی وضاحت کر دوں کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم سب کے لیے پاکستان بہت اہم ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی بڑے مقدم ہیں، اور ان کی دن رات کوشش ہوتی ہے۔ موسٹلی سامنے آئی جی صاحب ہوتے ہیں، دیگر جو ہمارے آپریشن میں لوگ ہوتے ہیں، افسران وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی اس طرح کا گروہ پکڑا جاتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ سی ٹی ڈی کی عمر کے سے آپ واقف ہیں، اور اس طرح اور بڑے ہمارے افسران ہیں جو پیچھے رہتے ہیں، جو سامنے بھی نہیں آتے، لیکن ان کی وجہ سے پورے ملک میں بہت بڑی تباہی، تخریب کاری اور بہت بڑا جو خطرہ ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ اور بہت سارے گروہ یا گروہوں کو جب ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، تو کئی دفعہ باہر مطلب پریس میں بھی نہیں لایا جاتا، لیکن یہ انتھک محنت ہے ہماری تمام اداروں کی، کیونکہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارا دشمن کوئی سامنے آ کے نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ یوز کرتا ہے ہمارے ہی لوگوں کو۔ تو یہ بات بھی سب پر واضح ہونے چاہیے کہ جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اس سے کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، اور جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو یہاں پہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے۔ تو ہمیں سب نے مل کر اس کو مضبوط بھی کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح کی ظاہر ہے کسی سے انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوگا، کوئی اور ایشو ہوگا، تو یہ یہاں کے لوگ ان کے سہولت کار بنتے ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے ان سب کو یہ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں، پورے پاکستان میں جہاں بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ ظاہر ہے جو آج یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اس کے تانے بانے بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو آج کی بات ہے، یہ انویسٹیگیشن ہوگی، جے آئی ٹی بنے گی، دیگر چیزیں ہوں گی، تو پھر جو بھی اس میں شامل ہوگا کسی کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ہم سب کا فرض ہے، خاص طور پر آپ میڈیا اس میں ہمیں سپورٹ کریں، اور جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو مکمل طور پر آپ کا اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنٹ فورسز ہیں۔ ناکام ہو چکی ہے کنٹرول کرنے میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آئی جی سی نے مشتاق مہر صاحب وہ بااختیار ہیں، وہ اپنی مرضی سے ٹرانسپورٹ پوسٹنگ کرتے ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلے سعید غنی کا تو میں رسپانس کروں گا، آئی جی صاحب کیوں کریں گے؟ جی دیکھیں، سعید غنی صاحب کی اس طرح کی پریس کانفرنس میرے علم میں نہیں ہے، حالانکہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس طرح کی جو بھی بات ہے۔ آج بھی وہ بھی کچھ دیر پہلے فیئر ویل تھا کسی کونسل جنرل کا، تو اس میں سعید ساتھ تھے۔ جب یہ آج کا یہ واقعہ پتہ چلا تو انہوں نے تو بڑا اپریشیٹ کیا اس بات کو۔ اب آپ پتہ نہیں کب کی پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں، میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس میں کوئی اس طرح کی چیز۔ دیکھیں، ہم سب با اختیار آئی جی صاحب بالکل ہیں، لیکن ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور وہ جو بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں یا جو بھی افسر یہاں پہ ہے اس کی ذمہ داری سے ہم لوگ بری الذمہ نہیں ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ اس سے بری الذمہ ہو، لیکن یہ سب ساتھ ہیں اور ہم سب مل کر کام کرتے ہیں، اور یہ با اختیار ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر یہ با اختیار نہیں ہوتے تو آپ نے تو بھی ایک سوال پوچھا ہے تو 15-20 سوال آگے ہوتے۔ جی وہ ادھر ہی دے رہا ہوں، آئی جی صاحب کی طرف ہی دے رہا ہوں۔ آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے آئی جی صاحب کو دے رہا ہوں۔ جی جی دیکھیے، میں نے ایک پریس کانفرنس نہیں سنی، ورنہ میں ضرور اس کا جواب دیتا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے روئے سخن میں کہہ گئے ہوں کچھ، لیکن میرے نوٹس میں یہ پریس کانفرنس نہیں ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے آپ کا کہ ریسنٹ جو
बलूचिस्तान में कराची में कुछ मर्डर्स हुए हैं, वो आपको सारा पता है ज़ाती दुश्मनियों पर हुए हैं। उसमें हमें कुछ लोग पकड़े भी गए, आज सुबह भी जो हुए वो भी ज़ाती दुश्मनी पर हुए हैं। पिछले हफ्ते भी जो हुए आपको पता है, उसमें भी ख़वातीन का मैं नाम लोगों का ज़ाती चक्कर ही था, एक 4 हुए 2 हुए। और बाकी ये जो दूसरे इंसिडेंट्स हैं आपको पता है स्लीपर सेल्स होते हैं दहशतगर्द तंजीमों के, वो पुलिस दूसरे इदारे पकड़ते रहते हैं, न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, लेकिन तो वो आते रहते हैं और एक्टिविटी करते रहते हैं। तो हम ये कहें कि टोटली जैसे तला साहब ने कहा या किसी और दोस्त ने कहा कि ये ख़त्म हो गए, तो ये कहना मुश्किल है कि ख़त्म हो गए। स्लीपर सेल हैं, तमाम दहशतगर्द तंजीमों के भी हैं, जो ये सब नेशनलिस्ट ग्रुप है उनके भी हैं। तो वो तो वारदातें करते रहेंगे, लेकिन जितनी हमारी वो कोशिश है वो न्यूट्रलाइज होते रहते हैं। और कुछ जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा वो मीडिया में आते हैं, कुछ मीडिया में नहीं आते, लेकिन जो असल वो हैं बाख्तियार हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत, उनको पता है कि क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा मैं साहब एक सवाल का जवाब दिएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने मुल्क दुश्मन जो मुलविस दहशतगर्द थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया, मगर इस वक्त जो है समाज दुश्मन जो अनासिर है जिसमें खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम है वो उरूज पर पहुंचा हुआ है। 2020 जो गुजर गया तारीख तरीन बुलंद उसमें स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह ये साल का पहला महीना गया, इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ जो है वो रिकॉर्ड वारदातें हुई हैं। उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो बताइएगा जरा। आईजी साहब इसके साथ ये भी बताइएगा कि इंटीरियर सिंध में खास तौर पे शुमाल सिंध में सक्खर, शिकारपुर, कशमोर, कंदरकोट, घोटनी डिस्ट्रिक्ट में जो अगवा का जुर्म है वो इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर गया है। सैकड़ों लोग अगवा हो जाते हैं, वहाँ पर फेक इनकाउंटर होते हैं। गुज़श्ता रात भी सहाफ़ियों को शिकारपुर सिटी में डाकुओं ने आधे घंटे तक बीच सिटी में इम्पोर्टेंट तरीन जगह पे यरगमाल बनाया है, लूट मार की है, सहाफ़ी वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में जो अगवा वाला क्राइम है वो उसको आप किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं? देखिए पहले कराची का जवाब दें। कराची का जो स्ट्रीट क्राइम है देखें, उसका जो है वो शॉर्ट टर्म तो कोई सॉल्यूशन नहीं, लॉन्ग टर्म यही है कि जब तक इसमें कोई 2.5 करोड़ का शहर है, हम कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं लाएंगे। जैसे हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरा नहीं आएंगे, मोटरसाइकिलों में जो है वो ट्रैकर नहीं लगेंगे, तब तक इसको कंट्रोल करना मतलब काफ़ी मुश्किल है। जहाँ तक आपने अंदरूनी सिंध का बताया उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है प्रॉब्लम, लेकिन आप उसमें ऑफिसर्स चेंज करते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर डिस्ट्रिक्ट था कश्मीर था, वहाँ पे भी काफ़ी मतलब 90% इम्प्रूवमेंट हो गई है। बाकी जो दूसरे अगवा की वारदातें उसमें तो हमें मीडिया का साथ चाहिए। उसमें 95% जो लोग हैं वो हनी ट्रैप यानी किसी खातून की फ़ोन पे जाते हैं और वो कई लोग हमें बताते भी नहीं। तो ये तो हमें मीडिया का आपको हाँ हमें आपका ताउन चाहिए कि लोगों को गाइड करें कि भाई ये फ़ोन पे आप जो है ना वो जिस तरह ट्रैप में आते हैं तो धोखा ही होता है। मतलब तो ये इसमें मीडिया को ये चीज़ उजागर करने की ज़रूरत है। ये उस तरह प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले होता था कि किसी को रोड से उठा के ले जाएं, किसी के घर के घुस के उसको अगवा करें। ये उनको फ़ोन करके ट्रैप करते हैं। मुश्ताक बैठ साहब, स्ट्रीट लीडर्स गिरफ्तार होते हैं, पुलिस बताती है कि पहले भी गिरफ्तार हुआ, जेल या छूट जाता है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि या तो पैरवी सही नहीं हो रही या अदालतों से उन्हें सजा नहीं हो पा रही, जो बार बार वो छूट के आ जाते हैं, या उनका कोई ये गैंग बुकला के साथ मिला हुआ जो उन्हें छुड़वा देता है? क्या मसला है? देखिए ये जो है ना इसमें हम ज़ाहिर बात है अपनी पैरवी को बेहतर कर रहे हैं, उसमें हम सेक्शंस फ़र्क लगा रहे हैं। और दूसरा अब हम उसमें लिख रहे हैं पहले पेज पर भी चालान में भी कि जी ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उससे इंशाल्लाह अदालतें उनको जो है ना वो ज़मानत देने में ज़रूर जो है ना वो सोचेंगी और फ़ायदा होगा। ये बताएंगे ये जो क्रिमिनल्स आज पकड़े हैं आपने, इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है या ये बिल्कुल समाज नहीं? नहीं देखिए अभी तो 3, 4, 5 घंटे हुए, तो जो अब तक की तफ्तीश है उसके मुताबिक तो नहीं है, लेकिन हम जैसे इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, दूसरे DNA वगैरह लेंगे, फिर पता चलेगा कि पिछली किसी वारदात में शामिल है कि नहीं। अच्छा शाह साहब और आईजी साहब दोनों को मुबारक हो, हुकूमत को भी पुलिस को भी कि अगर वाकई इस तरह के दहशत मारा गया है और पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसा तो नहीं कि ये भी इनकाउंटर जो है राउंड वार टाइप का हो कि दोबारा कोई गुस्सा आ जाए कि ये क्या हमारा बंदा मर गया ना मासूम, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? थैंक यू। ऐसा जी बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो आज हुआ है शाह लतीफ़ टाउन थाने की हद में, जिसके मुकम्मल तौर पर इतना बड़ा असले की खैब
मिली है, जो आप खुद बता रहे हैं कि एक रक्षा का क्या इशू था, तो रक्षा यूज़ होना था, वो जो VBIED की तरह जो बनाई जाती हैं गाड़ियाँ जिनको बाद में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे वहाँ से चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, सुसाइड जैकेट मिली हैं, और ये रक्षा भी उसी उसमें था जो VBIED जो होता है जिसका मुखफ़िफ है कि जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं इस तरह के उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात की उमाजी करते हैं कि ये वही लोग हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं और हमारे सूबे में इंतशार फैलाना चाहते थे, बड़ी कार्रवाइयाँ करना चाहते थे, और भी AK-47 मिली हैं दीगर। तो मैं जैसे आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जैसे ही इंटरोगेशन होगी वो भी आप सबके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप सबके सामने ये चीज़ें आएँ। और देखिए एक बात सुन लें, वो बाद में अभी तक केस वो भी कोर्ट में ही है ना, कोर्ट की उसमें ही चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने हैं और इसमें सब लोग एक जॉइंट ये ऑपरेशन था जिसमें मैंने पहले भी कहा कि हमारी CTD और हमारे हसास इदारे ये सब लोग उसमें शामिल हैं। और मेरे ख्याल में जहाँ पे मुल्क दुश्मन की बात आए, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे हम सबको साथ होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मार्क जो हैं ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा देते हैं जो हमारे इस मुल्क में अमन नहीं चाहते या इसमें या डीस्टेबलाइजेशन की तरफ वो जाना चाहते हैं। तो आप सब तो इसमें हमें साथ दें और आप बिल्कुल चेक करें, आपके में भी जहन में उबाम हो, इस बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये एक दो वो चीज़ें इनके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, जो गैर मुल्की लोग हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर ये आपको DIG साहब ने बताया, IG साहब ने बताया कि ये तो एक क्लियर था ना कि उनके पास जो चीज़ें मिली हैं उनसे ये साबित है कि वो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पास जो सपोर्ट थी वो रॉ की थी। तो इसमें तो हम क्लियर हैं बिल्कुल, इसलिए इसको कह के फिर ये बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों में आ जाएंगी। तो आप तो हमें सपोर्ट करें, आप तो अप्रिशिएट करें पुलिस को भी, एहसास अदारों को भी। माशाल्लाह आपने अप्रिशिएट की बात की, तो क्या ये जो जिस टीम ने कार्रवाई की सिंध हुकूमत कोई इनाम या कोई तरक्की या कोई? जी बिल्कुल उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को पूरी जब रिपोर्ट जाएगी, इंटरोगेशन भी मुकम्मल तौर पे आए, और ये हकदार हैं इस बात के। इन्होंने अपनी जानों पे खेलकर हमें बचाया है, हमारे बच्चों को बचाया है, आपको बचाया है, हमारी भाई बहनों बुजुर्गों को बचाया है। अगर ये कार्रवाई हो जाती जिस तरह की डिटेल मिली है, मैं भी आपके साथ इस वक्त हम कुछ वो शेयर ना कर रहे हों, लेकिन जब मुकम्मल इंटरोगेशन होगी तो आप सबको ये सारा इल्म हो जाएगा, और मैं भी आप भी इनके लिए कुछ बहुत अच्छा और नहीं तो लिख ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू।